चांगल्या बॅटरीची अपेक्षा असणार आहे तमाम क्रिकेट रसिकांना. महापौर चषक 2021 प्रेझेंटेशन बॉक्स सध्या तुम्ही पाहत आहात. खारबाव संघाचे सर्व खेळाडू मैदानामध्ये. सामना प्रत्येकी 5 षटकांचा असेल. एक मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न राहील या मॅच मध्ये राहणार टीमच्या फलंदाजांचा. पाहू शकाल तुम्ही सन्माननीय सौद खतीब साहेब, त्याचप्रमाणे माननीय श्री नितीनजी पाटील विद्यमान नगरसेवक, त्यांच्या समवेत उमेश चव्हाण, मयूर पाटील यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. दोस्तों, लौट चलते हैं महापौर चषक की अद्भुत दुनिया में. सुबह के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आप देख रहे हैं ये मुकाबला ग्रामीणगढ़ से. आज ओवरकास्ट कंडीशन है. आसमान में हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं. सन हैज गॉन बिहाइंड द क्लाउड. Ideal cricket condition. And remind you, Science won the toss, selected field first. Science Sport Kharbao to openers on the ground. Vilas Smurti Ranal. Yes, Vilas Smurti Ranal, Ajay, have a strong batting lineup like in-form all-rounder Chirag Mali. चिराग माळी स्वतः संघनायक देखील आहे या टीमचा. चिराग माळीच्या व्यतिरिक्त आपण पाहायला गेलो तर भावेश सारखा चांगला फलंदाज आहे, अक्षय आहे, त्याचप्रमाणे नितीन पाटील सारखा एक अतिशय अनुभवी दांडगा अनुभव असलेला अष्टपैलू खेळाडू या टीम कडे आहे. Yes, both team have a balanced side in there. And two openers on the ground. Play begin now. Devesh and Bhavesh. These two are the openers. Is going to be Pranay Patil. Open the bowling attack, the captain of Science Sport Kharbao. Welcome all of you and good morning. Today is a different climate here at the heart of city, Challenge Cricket Ground. Saud Khatib, Nagar Sevak, Nitin Patil, Raju Dasri, Mayur Patil, watching from a presentation box, is going to be Pranay Patil. Open the bowling attack. First ball, batsman tried to cut, edge and gone. What a magnificent delivery. And finally batsman Devesh Naik is out for duck. फुटवर्कने साथ दिली नाही. खरं तर विड्थ होती त्या ठिकाणी. कट करण्यासारखाच बॉल होता. कट करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र फक्त एज लागली आहे बॅटची आणि सहज सोपा झेल टिपलाय एष्टांच्या पाठीमागे. एष्टी रक्षकानं खूप निराश होऊन तंबूत परततोय फलंदाज देवेश नाईक. शून्यावर बाद झालाय. गोल्डन डकचा शिकार झालाय. पहिल्याच बॉलवर तंबूत परतावं लागलंय देवेशला. Slightly extra bounce is there. Batsman looking for a square cut. Too close to cut. पहिल्या बॉलवर गडी बाद केलाय प्रणय पाटीलनं. स्वप्नवत सुरुवात त्याच्यासाठी म्हणावी लागेल. Next match between Sumit Enterprises and Ved 11 Dhaniu. Sumit Enterprises Pogao and Ved 11 Dhaniu. First wicket has fallen now. Very shaky start here by Vilas Smurti Ranal. Not for one. Pranay Patil. Facing him batsman Bunty Patil. Right arm over the stumps. Goes to Bunty. This time put away in the air. Could be caught. Yes, he's gone. Caught at backward square leg boundary.
And what a start from Pranay Patil and what a start from Science Karbao. सनसनीखेज सुरुवात या सामन्याची आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पहिल्या 2 चेंडूंवर 2 गडी बाद झालेत. थोडासा आकुटप्प्याचा बॉल होता, बॅकफुटला गेला, हुक देखील केला होता, मात्र थेट फिल्डरच्या हातामध्ये. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला कुठलीच चूक केली नाही फिल्डरने. चांगला झेल पाहायला मिळाला आणि आता मात्र पहिल्याच षटकामध्ये गोलंदाज प्रणय ही इज ऑन हॅट्रिक. Only one bowler claimed the hat-trick in Mayor Cup 2021. Pranay Patil on hat-trick. या स्पर्धेची पहिली हॅट्रिक काल आपल्याला पाहायला मिळाली. आईदेवी वडुनगर टीमच्या धीरज धुमाळेने तो पराक्रम केला. New batsman joined Karan Kamble. But I think Ranal in deep trouble now. Back-to-back 2 wickets. In international cricket, in first over hat-trick claimed by Chaminda Bas against Zimbabwe in first over, and in test cricket, Irfan Pathan claimed the hat-trick against Pakistan. Pranay Patil. This time batsman check his stroke and pushed as ball. Gentle push at cover point and with the stroke through for 1. What a over from Irfan Pathan. First to go Salman Bhatt, second to go Yunus Khan, and then Muhammad Yusuf. जबरदस्त स्विंग गोलंदाजीचा मुजारा आपल्याला पाहायला मिळाला होता. Pranay. But this time a lovely looking cover drive, front foot drive, straight to deep cover. Meanwhile, batsman gets 1. Ranal 2 for the loss of 2 wicket. Very shaky start here. 2 important wicket has gone for duck. Both batsmen on 1. Bunty Patil, Bhavesh Chaudhary and Karan Kamble. This time white signal from umpire. Karan Kamble on 1. Bunty Patil, tall man, on 1. Bunty is out. Bhavesh Chaudhary. Bhavesh Chaudhary in this season in good touch. This time a lovely looking cover drive. Picks on the full, firmly driven straight to deep cover. Runs now coming in form of singles. The departure of both wickets. And his score is 4 for the loss of 2 wickets. थोडासा सावध पवित्रा घ्यावा लागलाय फलंदाजांना, कारण सुरुवातीलाच 2 झटके लागलेले आहेत संघाला. त्यामुळेच बचावात्मक पद्धतीचं क्रिकेट पाहायला मिळत आहे. This time try to switch it, be seam outside the off stump. That marks an excellent over turn from Pranay Patil. Consider 4 runs and claim 2 wickets. एक ओवर की समाप्ति 4 रन 2 विकेटें गिरी है. आज जो मापुर चषक में क्या कुछ होगा ये मैं आपको बताता चलूं. आप दूसरा मुकाबला देख रहे हैं. जो लोग अभी अभी हमसे जुड़ गए हैं उनकी मालूमात के लिए कि पहले मुकाबले में सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में अंजुमन स्पोर्ट्स ने शिकस्त दी रहमानिया स्पोर्ट्स को. साइंस और विलास स्मृति रानाल के बीच में मुकाबला चल रहा है. पहला ओवर समाप्त हुआ है. साइंस स्पोर्ट्स ने टॉस जीत के फील्डिंग ली थी. तीसरा मुकाबला सुमित इंटरप्राइजेस पोगांव और वैद 11 धानियों के बीच में 2-2 हाथ. देखना है कि वैद के गेंदबाज और बल्लेबाज गेंदबाजी का कौन सा दवा लेकर आते हैं. नंद किशोर स्पोर्ट कारबाओं की परीक्षा रहेंगी सुनील स्पोर्ट वडावली के सामने. चौथे मुकाबले में ग्रामीण से प्रथम कुमार को अपना प्रथम मैच खेलना है. ललित स्पोर्ट लाभ के सामने ग्रामीण से. सोनादेवी टेमगढ़ और एसपी दापोडे के बीच में भिवंडी ओपन का सबसे बड़ा मुकाबला. कृष्णा इंटरप्राइज और श्री अष्टविनायक टकराएंगी 40+ में 7वें मैच में. गेंदबाजी के लिए नितेश पाटिल को लगाया गया है. उनकी पहली गेंद फ्लिक की हवा में. ओ हो एक हाथ का कमाल. इस तरह के कैचेस लिए नहीं जाते हैं, हाथों में बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं. अप्रतिम झेल. फटका चांगला होता. एफर्टलेस फ्लिकचा फटका खेळला होता फलंदाजाने, मात्र बॉल हवेत गेला आणि काय जबरदस्त झेल टिपलाय त्या ठिकाणी फिल्डरने. पाहू शकाल तुम्ही रिप्ले मध्ये. मनगटी प्रहार केला होता चेंडूवर. स्वतःच्या उजवीकडे धावत जाऊन एका हाताने हा झेल समाप्त केलाय फिल्डरनं. सूरज होता त्या ठिकाणी. आउटस्टँडिंग कॅच. यस
हालांकि बैट्समैन ने भी तो ताकत नहीं लगाई थी, कलाइयों के बलबूते पे टर्न किया था। आज का 8वां मैच भिवंडी ओपन से वीएन स्पोर्ट और जय गावदेवी कुमारपाड़ा के बीच में, 9वां मैच दूसरे मैच की विजेता और तीसरे मैच की विजेता ग्रामीण से, 10वां मैच चौथे मैच की और 5वें मैच की विजेता टीम, 11वां मैच भिवंडी ओपन सिटी से फाइनियर बनाम बंटी स्पोर्ट्स, 12वां मैच अगड़ी राजा माहौल बनाम 9वें मैच की विजेता टीम और 13वां मैच हांसी का स्पोर्ट और 10वें मैच की विजेता टीम। इस बीच पुल और पावरफुल खड़े खड़े गेंद को भेज दिया बाउंड्री की सैर कराने सुबह सुबह, अच्छा स्ट्रोक। खूपच छान फटका. यावेळेस चेंडूच्या लेंथमध्ये थोडीशी चूक घडली होती. थोडासा आखूड टप्प्याचा बॉल होता, आतमध्ये देखील बॉल टप्पा पडल्यानंतर आला, परंतु चांगल्या पोझिशनमध्ये येऊन हा पुलचा फटका एक्झिक्यूट केला आहे फलंदाजानं. सुरेख षटकार. अक्षय चौधरी और इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर स्ट्राइक पे भावेश चौधरी। भावेश चौधरी इस सीजन में बहुत अच्छे टच में है सभी फॉर्मेट के क्रिकेट में, और दोनों भाई इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हैं। अगले मैच में शिल्के परिवार शिल्के ब्रदर्स को हम देखेंगे। पाटिल ब्रदर्स देखे हमने, माली ब्रदर्स देखे, ठाकरे ब्रदर्स देखे। एक और आसमान में खेला हुआ स्ट्रोक, क्या गेंद मैदान के अंदर? यस, करण पाटिल ने कोई गलती नहीं की और आउट हो गए भावेश चौधरी। क्या आज आपको लगता है कि एक सिक्सर लगाने के बाद फिर से जश्न मनाना जरूरी था? खरं तर संघाची जी परिस्थिती आहे त्यानुसार फलंदाजी करणं गरजेचं होतं. अगोदरच 3 महत्त्वाचे फलंदाज बाद झाले आहेत. एक षटकार तुमच्या बॅटमधून आलाय, थोडा संयम दाखवणं गरजेचं होतं. थोडासा खोलवर टप्प्याचा बॉल त्याला लॉफ्ट केलं आणि समोरच्या दिशेनं षटकार ठोकणं फारच कठीण काम आहे. एवढा जर जास्त उंच चेंडू गेला तर मात्र षटकार जाणं फार कठीण असतं. चांगला झेल मात्र पाहायला मिळाला. कॅचिंग खूप छान पाहायला मिळते या मॅचमध्ये देखील. आजच्या पहिल्या सामन्यामध्ये देखील दोन्ही संघांनी उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण दाखवलं होतं. मरता क्या ना करता, सबसे इन्फॉर्म ऑलराउंडर चिराग माली आए हैं नॉन स्ट्राइक पर। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही करारा थंप किया था, थंपिंग कवर ड्राइव, 1 रन। चिराग माली सभी फॉर्मेट में इस वक्त सुर्खियों में है। लक्षवेधी कामगिरी केलेली आहे चिराग माळीनं या हंगामामध्ये. मग सिटी क्रिकेट असेल किंवा ग्रामीण क्रिकेट, दोन्ही फॉर्मॅट्समध्ये खूप छान खेळ त्याचा आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे. आणि या हंगामामध्ये काही स्पर्धांमध्ये तो ओपन क्रिकेट देखील खेळलेला आहे. 11 रन 4 विकेटों के नुकसान पे ओवर नंबर 2 का खेल चल रहा है। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में तैयार रहना है। सुमित इंटरप्राइजेस पोगांव और वैद 11 धानीव। इस मरतबा टर्न करते हुए ऑन साइड पे बल्ले को नीचा करके खाता खुला चिराग माली का। ही जोडी फार महत्वाची असणार आहे इथनं विलास स्पोर्ट्स राहणार टीमसाठी. स्थिती फारच नाजूक झाली आहे. 12 धावा धावफलकावर तब्बल 4 गडी बाद झालेले आहेत आणि दुसरं षटक आता मात्र समाप्तीकडे चाललेलं आहे. चांगली गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये प्रणयने 2 गडी बाद केले आणि या षटकामध्ये नितीशने देखील 2 गडी बाद केलेत. नितेश पाटिल इस मर्तबा पैरों के सामने बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्क करते हुए ऑन साइड में, टकिंग ऑन दी ऑन साइड, 1 रन बनता हुआ स्कोर 13 पे पहुंचा है, जबकि ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 स्कोर है 13, विकेट गिरी है 4। ये देखिए किस तरह से पिछले ओवर की अंतिम गेंद को खेला गया था. लोअर फुल टॉस थी लेकिन छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए बहुत खूबसूरती के साथ टर्न किया था ऑन साइड में बैट्समैन ने. तो इसमें क्रीज पर है चिराग माली और उनके साथ करण बल्कि अक्षय चौधरी. आने वाले बल्लेबाजों में नितिन का आना बाकी है. तो अभी भी अच्छी बल्लेबाजी है रानाल टीम के पास, लेकिन इसी तरह से यदि लगातार विकेट्स और गिरते चले गए तो फिर 5 ओवर्स पूरे खेलना भी मुश्किल साबित हो सकता है. इसके बाद आज का तीसरा मुकाबला वेद 11 धानीव और सुमित एंटरप्राइजेस पोगांव के बीच में.
अजय, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं 40 प्लस रन चाहिए, जिस तरह देखा हमने? हालांकि सुबह के सत्र में रन कम बनते हैं, लेकिन उसके लिए क्रीज पर टिकना होगा बल्लेबाजों को। ऋषभ आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया यॉर्कर लेंथ खोद कर निकालना पड़ा था, एक तेज सिंगल। इस तरह की जब गेंदबाजी होती है सिद्दीक जी, तो बहुत मुश्किल होता है। बैट्समैन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तेज गति से रन्स बनाना उतना आसान काम होने वाला नहीं है। गेंदबाज सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी प्रभावशाली बॉलिंग देखने को मिल रही है कारवाव टीम द्वारा। इस बार सीधे बैट से, फिर आखिर में बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव किया। अभी भी हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजों को आजादी बरतने नहीं दे रहे। बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी हम देख रहे हैं। अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है, वैद 11 धानियों और पोगांव। केवल सिंगल्स बनते हुए इस ओवर में, थोड़ा सा समय भी लेते हुए बल्लेबाज, और ये जरूरी भी है। इस बार घुमा दिया है फुल टॉस गेंद, लेकिन पर्याप्त एलिवेशन नहीं बना पाए और गैप भी नहीं ढूंढ पाए। डिप स्क्वायर की दिशा में बढ़िया फील्डिंग, एक और सिंगल। देखिए, कोविड गाइडलाइंस की वजह से हमने कल ही बताया था, ग्रामीण और 40 प्लस के जो मैचेस है वो 4-4 ओवर के रहेंगे। सिटी इमर्जिंग और भिवंडी ओपन के मैचेस 5-5 ओवर के रहेंगे। ये मुकाबला भी 4 ओवर का है। कल रात से हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये मुकाबला 5-5 ओवर का है। यस, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि ये मुकाबला 5 ओवर का है। स्ट्राइक अक्षय के पास, एक और फुल टॉस। इस बार ड्राइव कर दिया है, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। टाइमिंग अच्छी थी, पिछली 2 गेंदें कमजोर रही है, लेकिन उसका फायदा उठा नहीं पाए हैं पूरी तरह से बल्लेबाज। लगातार सिंगल्स आते हुए 5 गेंदों पर 5 सिंगल्स बने हैं इस ओवर में, और इसे गेंदबाज ज़्यादा दबाव में आने वाले नहीं है। गेंदबाजों पर दबाव डालना है तो आक्रामक खेलना होगा अब यहाँ से। इसके बाद और 2 ओवर का खेल बचा हुआ है पारी में। स्कोर 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में चिराग माली, पूरी तरह से चूक गए, और इसके साथ ही एक किफायती ओवर समाप्त होता हुआ ऋषभ काटेगा। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कमाल की बॉलिंग हो रही है, बैट्समैन को अभी भी आजादी बरतने नहीं दे रहे। अजय, इसे कहते हैं चैनल में गेंदबाजी करना, इसे कहते हैं कॉरिडोर में गेंदबाजी करना, और सुबह के सत्र का अच्छा लाभ उठाया है खरबाओं के गेंदबाजों ने। आज कंडीशंस कहीं ना कहीं गेंदबाजों के लिए काफ़ी अनुकूल है। पहले मैच में भी कंडीशंस का अच्छा इस्तेमाल किया गेंदबाजों ने, खासतौर पर अंजुमन स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने, और उससे पहले रहमानिया स्पोर्ट्स की ओर से आसिम ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, जिन्होंने 5 विकेट्स चटकाए। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि उनकी टीम जीत नहीं पाई, क्योंकि बल्लेबाजों ने निराश किया था। 43 का जो टारगेट था 5 ओवर में, उसको चेज नहीं कर पाई थी रहमानिया स्पोर्ट्स। नेवर लेकर अक्षय पाटिल बायत के गेंदबाज है। इस समय राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन क्रीज पर है। महापौर चषक 2021 का यह वीआईपी बॉक्स, अतिथिगण साथ में चैलेंज स्पोर्ट्स के कई मेंबर वहां पर खेल का मजा लेते हुए। अक्षय की पहली गेंद बायत से राउंड द विकेट, हल्की सी शॉट है, पुल कर दिया है गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और बहुत ही अच्छा कैच।
पराग वतारी ने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल काउ कॉर्नर की दिशा में वो खड़े हैं और बाउंड्री लाइन के बहुत नजदीक ये कैच उन्होंने लपका है। हाँ, बिल्कुल दूर की बाउंड्री को टारगेट करना चाहता काऊ कॉर्नर में, बैकफुट पे जाके बहुत बढ़िया पंच जरूर किया था, लेकिन फील्डर को क्लियर नहीं कर पाए। अब कठिनाइयां और बढ़ती हुई रानाल के लिए। बढ़िया कैच बाउंड्री लाइन पे। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, उसको खींचकर खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड में। एलिवेशन तो बना था, लेकिन अंतर बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आप हवा में खेलते हो। जो बाउंड्री का अंतर है उसको पार करना चाहिए, वो पार नहीं कर पाई थी गेंद। ये देखिए, पुल किया था गेंद को ऑफ स्टंप के काफी बाहर से। ऐसे लग रहा था कि एक पार्टनरशिप पनप रही है मैदान में, लेकिन वो पार्टनरशिप भी टूटती हुई। अक्षय आउट हुए हैं, नए बैट्समैन गीतेश आए हैं, दोनों भी अब भाई क्रीज पर। ओह, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, लंबा हिट, गेंद को निकाल दिया है डीप स्क्वेरिश मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। This is the Chirag Mali's stroke. What a great hit. Interesting to see in replay. Look at that. Full swing of the bat. Magnificent stroke indeed. Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing. Going, gone out of the ground. What a magnificent hit from Chirag Mali. अंडर प्रेशर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला है चिराग माली ने। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को स्विंग कर दिया था। थोड़ी सी फुलर लेंथ गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लगी थी गेंद, और जैसे ही गेंद बल्ले के ऊपर लगी थी 6 रनों की छाप पड़ चुकी थी उस पर। मधुर ध्वनि भी निकला था जब उन्होंने स्ट्रोक खेला था। चिराग माली का ये पहला सिक्सर। 9 पर बैटिंग करते हुए कप्तान चिराग। टीम का स्कोर 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर अक्षय। इस बार लोअर फुल टॉस है, टर्न कर दिया है ऑन साइड में। खराब क्षेत्र रक्षण, प्रणय द्वारा गलती और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। यह अपेक्षा नहीं होती है सिद्दीक जी प्रणय जैसे खिलाड़ी से। कप्तान थे वहां पर, और ये देखिए दोनों पैरों की दरार से गेंद फरार होगी। इस तरह का चौका बल्लेबाजी में आत्मविश्वास भर देता है। हालांकि स्ट्रोक बहुत तेज आया था। इस बार कैच का मौका है, जी हाँ, सीधे फील्डर के पास और आउट होते हुए चिराग माली। डीप मिड विकेट पर बहुत ही अच्छा कैच, महत्वपूर्ण सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए गेंदबाज अक्षय थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए हैं, लेकिन विकेट भी चटकाए हैं उन्होंने। अभी तक 4 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को आउट किया है और 10 रन खर्च किए हैं। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर से स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, लेकिन फ्लैट चला गया स्ट्रोक। एलिवेशन बिल्कुल भी बना नहीं पाए और सीधे फील्डर के हाथों में। कोई गलती नहीं की करण पाटिल ने। दूसरा कैच लपका है। चिराग माली के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं साइस स्पोर्ट के जो कैप्टन है प्रणय पाटिल, उन्होंने चैन का सांस लिया होगा। ये चौथे ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद एक और ओवर का खेल होना बाकी है इस पारी में। स्कोर 28 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। नितिन पाटिल बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर, पिछले कई सालों से खेल रहे हैं, अनुभव की कोई भी कमी नहीं है और संकट की स्थिति में कई मुकाबले उन्होंने अपनी टीम को जिताए हैं। आज भी एक अच्छे पारी की उम्मीद है उनसे, कहीं ना कहीं रानाल टीम को। एक अच्छा कैमियो यदि वो खेलते हैं तो जरूर स्कोर 45 के आसपास या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। यस अजय, देखा जाए तो 5 ओवर में दिन की रोशनी में कोई भी टीम को 50 प्लस टोटल तो बनाना होगा अगर उन्हें चुनौतियां देना है तो। देखिए, जब सलामी बल्लेबाज आते हैं तो एक बड़ा लक्ष्य लेकर आते हैं, लेकिन जब सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट होते हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फ्लॉप होते हैं, तो फिर उस लक्ष्य में थोड़ी सी कटौती करनी पड़ती है आने वाले बल्लेबाजों को। पहले सोच ये थी कि 60 के ऊपर जाए, लेकिन अब 45-50 के आसपास देख रहे होंगे। और आते ही झन्नाटेदार शॉट नितिन पाटिल के बल्ले से, शानदार सिक्सर। सारा गुस्सा उतार दिया और उनका स्टाइल देखिए जब शॉट को उन्होंने फिनिश किया। थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लगा कि उनका रिएक्ट हार्दिक पांड्या की तरह नजर आ रहा है। क्या शॉट खेला है, सुबह के मूड को बना दिया है। चाबुक, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल। हालांकि गेंद सीने के करीब थी, लेकिन अफलातून टाइमिंग।
बहुत महंगे साबित होते हुए अक्षय पाटिल इस ओवर में 2 छक्के लगे हैं, 1 चौका, यानी कि 16 रन खर्च किए हैं। सफल भी साबित हुए हैं, लेकिन रन्स काफ़ी ज़्यादा खर्च किए हैं। और जिस तरह का ओवर चाहिए था विलास स्पोर्ट्स रानाल टीम को मैच में वापस लौटने के लिए, वैसा ही ये ओवर है। अभी भी 1 गेंद शेष है चौथे ओवर में। स्कोर 34 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। कमाल का शॉट खेला है नितिन पाटिल ने। गेंद की लेंथ को बहुत ही जल्दी पिक कर लिया था उन्होंने। गुडलेन से हल्की सी पीछे रखी हुई गेंद थी और ऑफ स्टंप के बाहर थी। वैसे देखा जाए तो गेंद बुरी नहीं थी, लेकिन शॉट बहुत ही उम्दा खेला गया। फील्डिंग की जमावट, विकेट कीपर के पीछे 3 खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट थर्ड मैन और एक खिलाड़ी बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट रखा गया है। ये 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है और बाकी के 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर है। ऑन साइड में काफी ज्यादा प्रोटेक्शन। आगे रखी हुई गेंद इस बार हालांकि एलिवेशन नहीं बना पाए, लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब। सिंगल जरूर मिलेगा यहाँ पर। सिंगल लेते हुए बैट्समैन नितिन पाटिल। नितिन पहुंचे 7 पर। गितेश ने अभी तक कोई भी गेंद खेली नहीं है और आखिरी ओवर में जब खेल शुरू होगा तो स्ट्राइक नितिन पाटिल के पास ही रहेगा। 4 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 35 रन 6 विकेटों के नुकसान पर विलास स्पोर्ट्स राहनाल। यह मुकाबला विलास स्पोर्ट्स राहनाल और साइश खारबाव के बीच में खेला जा रहा है। 5वें दिन का दूसरा मुकाबला है। आप देख रहे हैं मेयर कप 2021 भिवंडी। अंतिम 6 गेंदें बहुत ही निर्णायक 6 गेंदें साबित होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने की कोशिश यहाँ पर जरूर करेंगे बल्लेबाज। आखिरी ओवर में गेंदबाज के पास विकेट चटकाने का भी काफी अच्छा मौका होता है, क्योंकि हर गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज। अत्यधिक आक्रामक हो जाते हैं, उसका कई गेंदबाज फायदा उठाते हैं। ऋषभ की ये गेंद अच्छी गेंद थी। फुलर लेंथ मिडल नहीं कर पाए थे वहां पर नितिन, लेकिन इससे पहले कि बॉलर फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब। ऋषभ का ये दूसरा ओवर है। पहला ओवर अच्छा रहा था, किफायती साबित हुए थे, जिस वजह से कैप्टन ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे ऋषभ ने। तेज तर्रार गेंद बैट्समैन को चकमा दिया। विकेट कीपर भी बीट हुए। गेंद रिकोशियस होकर वहां पर चली गई है लॉन्ग लेग की तरफ। और इससे पहले कि थ्रो पहुंचता 2 रन 22 के रूप में ये 2 रन बहुत ही बेशकीमती रन है। अच्छी गेंद थी, रफ्तार बहुत बढ़िया, वाइड यॉर्कर थी। बैट्समैन खेलना चाहते थे स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉइंट की तरफ, लेकिन चूक गए थे। विकेट कीपर से गलती हुई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस बार सीधे बैट से ड्राइव कर दिया है, वी में खेला है। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, केवल 1 रन। और इस तरह से यदि सिंगल डबल्स आते रहते इस आखिरी ओवर में तो गेंदबाज ज़्यादा दुखी नहीं रहेंगे, कोई ज़्यादा चिंता का विषय उनके लिए नहीं होगा। आखिरी ओवर में बल्लेबाजों की कोशिश होती है कि गेंद को सीमा पार भेजा जाए, लेकिन अभी तक तो सफलता बल्लेबाजों को नहीं मिली इस ओवर में। इस बार मौका था फुल टॉस, लेकिन हैमर्ड किया डाउन द ग्राउंड। जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए। फिर से लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी एक्शन में और फिर से 1 रन। स्कोर आगे जाता हुआ 40 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम 2 गेंदें पारी में शेष। अच्छी गेंदबाजी, रफ्तार अच्छी है, जिस वजह से कई बार ऐसे होता है कि उनकी कमजोर गेंदों पर भी बल्लेबाज बड़े प्रहार कर नहीं पाते हैं। इस बार लोअर फुल टॉस फिर से आउटफील्ड में खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में और फिर से सिंगल। बहुत टाइट गेंदबाजी, यहाँ पर रन आउट का मौका है और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। गितेश रन आउट। गिरने वाला ये 7वां विकेट। मात्र अब 1 गेंद पारी में शेष है। देखिए तेज भी कर रहे हैं और लगातार आगे रखने की कोशिश। शॉर्ट पिच गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं की है ऋषभ ने, और पहले ओवर में भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। बहुत सही फैसला अंपायर का। बैट्समैन काफी दूर रह गए थे, क्रीज में सुरक्षित पहुंच नहीं पाए गितेश। और इस तरह का जोखिम उठाना लाजमी था, क्योंकि अंतिम ओवर का खेल चल रहा है। सफल हो जाते तो जरूर 1 रन का फायदा हो सकता था टीम को, और किसी भी खिलाड़ी को अपनी टीम के फायदे के बारे में पहले सोचना चाहिए। स्कोर 41 रन। नए बैट्समैन आए हैं दीपेश, नंबर 9 पर आए हैं।
7 विकेटों का पतन हो चुका है और यदि इस गेंद पर बड़ा प्रहार करने में सफल हो जाते हैं दीपेश तो ज़रूर उनके वो रन्स काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी, किसी तरह से गेंद को ऑन साइड में खेलने में कामयाब, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, फिर से रन आउट का मौका और अंतिम गेंद पर भी बैट्समैन रन आउट होते हुए, अंतिम गेंद पर केवल 1 रन, वो भी लेग बाय के जरिए। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई विलास स्पोर्ट्स रानाल टीम की टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग की रानाल टीम ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में और केवल 42 रन बना पाई है रानाल टीम। पिछले मैच में भी 42 रन बने थे, 43 का टारगेट था और उसको डिफेंड किया गया था जूनियर कैटेगरी में अंजुमन स्पोर्ट्स द्वारा। इस मैच में क्या होगा देखेंगे हम थोड़ी देर में। 43 की चुनौती है मैच को जीतने के लिए साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम के सामने, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ, जहां पर 2 टीमों के कप्तानों के साथ मौजूद मेरे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भावे। थैंक यू अजय गरत। आइए दोस्तों, ग्रामीण फॉर्मेट से बड़ा मुकाबला होने जा रहा है सुमित इंटरप्राइजेस पोगांव और वैद 11 धानियों के बीच में। सुदर्शन शिल्के मुझसे जुड़ते हुए और प्रतीक पाटिल धानियों के। मैं यंग मयूर पाटिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस लेने जा रहे हैं। मयूर पाटिल आने वाले दिनों का फेस ऑफ भिवंडी। टेल सुमित इंटरप्राइजेस ने टॉस जीता है। एक बात है कि पहले ही मैं साफ करता हूं, चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से सिटी क्रिकेट, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट और ग्रामीण के जो मुकाबले वो 5-5 ओवर के और 40 प्लस के जो मुकाबले रहेंगे वो 4-4 ओवर के। सुदर्शन, पहले तो ये बताइए, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहिए? फील्ड करेंगे पहले। सुदर्शन, कारण बता सकते हैं? जबकि हमने देखा है कि चेसिंग थोड़ा मुश्किल हुआ है। हाँ, लेकिन पहली मैच है, हम पहले फील्ड करना चाहेंगे, देख लेंगे, गेंदबाज आजमाएंगे सब और खेलने का अनुभव थोड़ा है हमें और अच्छी फील्डिंग वगैरह करेंगे। सामने की टीम बहुत मजबूत टीम कही जाती है, एक माइंड सेट करके आए हैं कि 5 ओवर में कहाँ तक रोकेंगे आप? एक माइंड सेट नहीं, लेकिन वो जो भी मैदान में होगा वो देखेंगे, बॉलिंग किसकी होती है अच्छी, उस हिसाब से हम बॉलिंग करेंगे। एक फॉर्मेट में आप खेल चुके हैं, तो ये बता सकते हैं कि इस पिच पे खेलने के लिए किस तरह का क्लास चाहिए? जी बिल्कुल, ये बॉल एकदम हल्का है, उस हिसाब से 6 मारना एकदम नामुमकिन होता है, लेकिन हाँ, जितना ग्राउंड खेलेंगे उतना अच्छा रहेगा, रन बनते जाते हैं, 6 मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती ग्राउंड के हिसाब से। अपेक्षा करें कि शिल्के परिवार का एक अच्छा क्रिकेट हम देखने जा रहे हैं? जी नहीं, ये शिल्के परिवार नहीं है, पूरा पोगाव परिवार है और पोगाव परिवार खेल रहा है और देख भी रहा है और उस हिसाब से अच्छा खेलेंगे हम। यस, ऑल द बेस्ट। धानियों के कैप्टन है, सबसे पहले ये बताइए कि चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड और महापौर चषक, इसमें खेलने का हर टेनिस खिलाड़ी का सपना रहता है। आप पहला मैच खेलने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग का ड्रीम था इधर खेलने का, अभी हम लोग को मौका मिला है तो हम लोग 100% करेंगे। अब ड्रीम को आप हकीकत में बदल रहे हैं। टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग। लेकिन आपको बल्लेबाजी दी गई, तो कितने रन तक 5 ओवर में आप देख रहे हैं? 35-40। ये बताइए कि आपके स्टार इस मैच में खेल रहे हैं? विश्वनाथ है, जय है, नंदवाद है, आसिफ भाई, हकीम है, बैटिंग सब लोग। विश्वनाथ यादव से क्या अपेक्षा है? 50। Yes, all the best. The news from the toss box is Pogaon Sumit Enterprises won the toss and they elected ball first. Back to Priyanshi studio. धन्यवाद सिद्दीक भावे। खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है, पारी शुरू होने जा रही है साइश खारबाव टीम की। गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छा काम किया है खारबाव टीम के लिए। कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। केवल 42 रनों तक पहुंच पाई है 5 ओवर के खेल में रानाल टीम, लेकिन खराब शुरुआत के बाद ज़रूर वापसी की है कुछ हद तक इस मैच में रानाल टीम ने भी। और एक ऐसा टोटल है जहां पर बहुत ज़्यादा संघर्ष हो सकता है इन दो टीमों के बीच में। मैच रोमांचक भी हो सकता है क्योंकि रानाल टीम के पास बहुत ही ज़बरदस्त आक्रमण है, खासतौर पर कैप्टन चिराग माली जिन पर सभी की निगाहें है। तेज़ गेंदबाजी करते हैं, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है चिराग और कप्तानी पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं प्रणय पाटिल और उनके साथ अक्षय पाटिल।
पारी की पहली गेंद, बढ़िया गेंद, जोरदार अपील हो रही है, बहुत ही विश्वसनीय अपील और अंपायर की उंगली भी ऊपर उठती हुई। पहली गेंद पर करारा झटका, प्रणय पाटिल आउट। अजय, ऐसा लग रहा है कि हम पहले इनिंग का रिप्ले देख रहे हैं। पहली इनिंग की पहली गेंद पर कॉट बिहाइंड हुए थे बैट्समैन और यहाँ पर बहुत बड़ा झटका, प्रणय पाटिल शून्य पे आउट। दुविधा में थे, फ्रंट फुट पर पहले आना चाहते थे, थोड़ा सा फ्रंट फुट को बाहर निकाला उन्होंने, फिर सोचा मैं ड्राइव खेलूंगा, फिर सोचा मैं कट खेलूंगा और दुविधा में ही रह गए। कौन सा स्ट्रोक खेलना था वो तय ही नहीं कर पाए। मेन सा किनारा लगा था, अंपायर ने भी थोड़ा सा समय लिया। अपील बहुत ही विश्वसनीय थी, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की थी और अंपायर ने आखिरकार सही फैसला सुनाया। I think this is a shaky reply from Science Sport Karbao chasing a target of 43. Remember, Rana Lev, a unit of bowling in their side and especially Chirag Mali, one of the great bowler. New batsman joined Parag Vatari. Not for one, Science Karbao chasing a target of 43 in 5 overs is going to be Chirag Mali, who claimed the very important wicket. He is the key bowler, he is the key all-rounder in all format of Bhiwandi Taluka cricket, like Giramin, like CT. Chirag Mali, tall man, turned from Asha Patil northeast end, facing him Parag Vatari. Goes to Parag, lovely looking cover drive, comes on his front foot and driven nicely straight to deep cover. Vatari of the mark with one and Science Karbao one for the loss of very important wicket Pranay Patil. काफी अच्छा फुटवर्क पहली गेंद पर दिखाया है बैट्समैन पराग वातारी ने। बिल्कुल गेंद के पिच तक पहुंचे, फ्रंट फुट को काफी आगे लेकर चले गए थे और एक अच्छा पुश किया उन्होंने ऑफ साइड में। Akshay Patil on his strike. This is the good battle. Chirag ball, switch it. What a magnificent shot through the backward point fence for 6 for 4. We wait for umpire signal. Great stroke played by Akshay Patil. चिराग माली के विरुद्ध इस तरह के शॉट्स खेलने के लिए आपके पास काफी ज्यादा आत्मविश्वास होना चाहिए। ये छक्का है, 6 रनों का इशारा करते हुए अंपायर। What a great start from Akshay Patil, and Akshay off the mark with 6 and his score is 7. Yes, clear the boundary. Great stroke, 6 runs. Chirag Mali, long run up to the wicket now. Goes past us. Here we go. Goes to Akshay, this time not a very good stroke. Try to drive in front of the wicket. Thick outside edge, rose to fly slip. But enough time batsman cross for a quick single. Akshay on 7, his score is 8 without loss. खारबाव की जो बल्लेबाज है, जरूर उन्होंने पिछला मैच बड़े गौर से देखा होगा। उस मैच में भी 43 का टारगेट था, हालांकि चेस करने वाली टीम रहमानिया स्पोर्ट्स जीत नहीं पाई, तो उसको देखते हुए काफी कुछ सीखा होगा खारबाव के बल्लेबाजों ने भी। Second 43 target today, consecutive in second match. This time turning on the onside. Vatari looking very confident because his back foot and off his hips turning on the onside. कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि वतारी जो है वो थोड़ा एंकर का रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि अक्षय एक ऐसे बल्लेबाज है जो जोखिम उठा सकते हैं और शुरुआत में बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। यदि 2-3 बड़े शॉट्स आते हैं अक्षय के बल्ले से तो फिर काम आसान हो सकता है आने वाले ओवर्स में। Yes, because the asking run rate is not a very huge. Chirag Mali goes to Akshay, goes his back foot and punched as ball straight to Chirag Mali on his follow through and there will be no runs. बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये, टप्पा पड़ने के बाद कट कर अंदर की तरफ आई थी, बैट्समैन बैकफुट पर चले गए थे। हालांकि थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी और जब गेंद आगे आती है तो कहा जाता है कि फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए, ड्राइव लगाने के लिए अच्छी गेंद होती है। लेकिन चिराग लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है, जिस हाइट से गेंद आती है उसका अंदाज़ा लगाना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेंथ को पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। That marks end of the first over. I think positive reply from Science Karbao
9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक ओवर की समाप्ति 9 रन 1 विकेट। बराबरी पे मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि चिराग माली का एक ओवर जब हुआ होगा तो साइंस खारबाओं के जो कैप्टन है उन्होंने चैन का सांस लिया होगा। बंटी पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है। इन कटर गेंदबाजी में बहुत जबरदस्त रहते हैं। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया हवा में, बढ़िया कैच। कैचेस विनिंग मैचेस। बहुत जल्दी अपने बाईं और दौड़ लगा के इस कैच को लिया है। देवेश नाइक ने ये कैच लपका है। बहुत ही मुश्किल अवसर था। ये देखिए तेज चली जा रही थी गेंद, लेकिन बहुत ही जबरदस्त पूर्वानुमान, एंटीसिपेशन लाजवाब। गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी। इम्प्रोवाइज तरीके से हुक किया था गेंद को और बैट्समैन को लगा होगा कि ये चौका है, लेकिन क्या कमाल का कैच। बिल्कुल एंटीसिपेशन तो बल्लेबाज का भी बहुत अच्छा था। उन्होंने देखा फाइन लेग ऊपर खड़ा और बंटी पाटिल जेन्युइन इन कटर बॉलर है। स्कोर है 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अजय लग रहा है ये मैच भी बहुत कट टू कट जाएगा। पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कई मैचेस फोटो फिनिश रहे। यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि आप भारत के A1 शो को देख रहे हैं, मापुर चषक 2021। देखिए फिर से मैं कहूंगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के कोविड-19 के गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। मैदान में मास्क पहन के आना है और एक उचित दूरी भी रखना है। जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है। हालांकि क्रिकेट का खेल ऐसा है जिसमें खिलाड़ियों के बीच में काफी दूरी रहती है। अंपायर्स भी गेंदबाज से, बल्लेबाजों से दूर खड़े रहते हैं। लेकिन गेंद और बल्ले के बीच की दूरी महंगी पड़ जाती है। जी हाँ। बंटी छोटे रनअप से मुड़ते हुए बंटी पाटिल इस मर्तबा बिल्कुल आंखों के नीचे ड्राइव करते हुए गैप में 1 रन बना। दूर से आए हैं फील्डर, 2 रन पूरे किए। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए करण पाटिल एक ऐसे बैट्समैन है, पिछले 3 सीजन से वो मिडल ऑर्डर में आके अपनी टीम के लिए, चाहे सिटी क्रिकेट हो चाहे ग्रामीण, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। कुछ इसी तरह से अपनी पारी की शुरुआत की थी। पराग वतारी ने संभल कर खेल रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी एक आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास किया और कैच आउट हुए। हालांकि कैच बहुत ही जबरदस्त लपका गया देवेश नाइक द्वारा। बंटी पाटिल, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे करण पाटिल। इस मर्तबा क्रीज में पीछे मिसक्यू शॉट है और आउट हो गए करण। बता रहे हैं अक्षय को कि गेंद बल्ले के ऊपर लगे। अब ऊपर लगे या नीचे लगे, जब सांप गुजर जाए तो लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। लगभग सीने के करीब आती हुई ये गेंद थी। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था जिस वजह से स्ट्रोक को कंट्रोल में नहीं रख पाए, और जो प्लान था कहीं ना कहीं उसके अनुसार मुझे लगता है कि बैटिंग नहीं हो रही है। पराग ने जिस तरह से शुरुआत की, मुझे लगा था कि वो शायद आखिर तक थोड़ा सा संभल कर ही खेलेंगे, अक्षय ही आक्रामक बैटिंग करेंगे। लेकिन देखिए पराग ने भी आक्रामक शॉट खेला, उसके बाद इन्होंने भी आक्रामक शॉट खेला और ये भी आउट हुए। लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, इससे गेंदबाज का श्रेय कम नहीं किया जा सकता, उनका क्रेडिट कम नहीं हो सकता है। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, कहीं ना कहीं मौके वो क्रिएट कर रहे हैं और फील्डर्स का भी अच्छा साथ मिल रहा है। ये देखिए हमारे दर्शकों को दिखाया जा रहा है मास्क पहन के। बहुत धन्यवाद चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, मनपूर्वक आभार। गेंदबाजी कर रहे हैं बंटी पाटिल। नए बैट्समैन मोनिश चौधरी बल्लेबाजी को आए हैं। 3 खिलाड़ी विकेटों के पीछे खड़े हैं सर्कल में। बंटी इस मर्तबा हुक करने की कोशिश, क्रीज में पीछे जाकर फिर अच्छी गेंद। आपको नहीं लगता है कि बल्लेबाजों की सोच ऐसी है जैसे 43 रन 5 ओवर में नहीं बल्कि 3 ही ओवर में बनाने हैं? यस एब्सोल्युटली ट्रू। और वो देख रहे हैं कि फाइन लेग पे कोई नहीं है और बंटी जेन्युइन इन कटर गेंदबाज है। इस मर्तबा
ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में दूसरे की कोशिश, खतरा बन गया था वहां पर, लेकिन कदमों को वापस खींचा मोनिस चौधरी ने। स्कोर इस वक्त 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या मुकाबला हो रहा है। पहले मैच में भी 43 का लक्ष्य था, दूसरे मैच में भी 43 का लक्ष्य। फुल टॉस गेंद हवा में खेला, शकर की गोली, आउट हो गए बैट्समैन। जो भी बैट्समैन शॉट खेलता है तो अपने बल्ले को क्यों देख रहा है? क्योंकि मिडल नहीं कर पा रहे हैं, और जब बैट्समैन मिडल नहीं कर पाता है तो वो जरूर बल्ला देखता है। फुल टॉस गेंद थी, ये तो हिटनी बॉल थी, लेकिन देखिए उस पर भी छक्का नहीं लगा पाए, फ्लैट चला गया स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी थी, थोड़ी अंदर लगी थी, और एक आसान सा कैच डीप में। बंटी ने खतरे की घंटी बजाई दी, 3 विकेट्स चटकाए बंटी पाटिल ने अपने एक ही ओवर में। लाजवाब गेंदबाजी और फील्डर्स का योगदान उसमें बहुमूल्य कहा जा सकता है। 12 पर 4 विलास स्पोर्ट्स राहनाल। बिल्कुल, इसे कहते हैं दिखाना रसगुल्ला और खिलाना करेला। फुल टॉस गेंद थी, उसका भी फायदा नहीं उठा पाए। नए बैट्समैन बहुत ही तगड़े ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। Look at that, wear mask and maintain social distance. मेयर कप 2021 दर्शकों से ये अपील है, निवेदन है, जो भी दर्शक मैच देखने आ रहे हैं ग्राउंड में, स्टैंड्स में, उनसे रिक्वेस्ट है कि मास्क पहने। मोनिस तरे आए हैं, पिछले बालिया मामा चषक में उन्होंने गोल्डन बाउंड्री लगाई। ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क पहने हुए आज हमारे मेहमान भी आ रहे हैं और दर्शक भी आ रहे हैं। दर्शकों के कोऑपरेशन के लिए उनका विशेष आभार। भावेश इस मर्तबा बल्ले के नीचे से गेंद को खेलते हुए फंबल किया वहां पर चिराग माली ने, लेकिन दूसरा रन मोनिस ने नहीं लिया। 1 रन से मोनिस चौधरी पहुंचे 2 पर। कुल स्कोर 13 रन। 5-5 ओवर का ये मुकाबला है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए मोनिस के लिए हवा में खेला है, फिर फील्डर नीचे, एक और विकेट। ऐसा लग रहा है कि मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग साइंस खारबाओं के बल्लेबाजों के लिए डेंजर जोन बन गया है। ये देखिए पहले ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, फिर लेग स्टंप की तरफ आ गए, घुमाना चाहते थे ऑन साइड में, टॉपेज लगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, सही लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है, आगे गेंदें नहीं मिल रही है, ड्राइव लगाने के लिए गेंदें नहीं मिल रही है, और क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलने के चक्कर में बल्लेबाज आउट हो रहे हैं। थोड़ा सा उछाल गेंदबाज प्राप्त कर रहे हैं, कंधे का जोर लगा रहे हैं, हिट द डेक हार्ड, उस तरह की बॉलिंग देखने को मिल रही है। उसका नतीजा बहुत अच्छा निकलता हुआ खारबाव टीम के लिए, और खारबाव टीम की स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत अब नजर आ रही है इस मैच में। 5 बल्लेबाज बहुत ही जल्दी आउट हुए हैं, स्कोर केवल 13 रन। अभी भी 30 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मर्तबा छोड़ दिया वाइट। 14 पे पहुंचा है स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पे। गेंदबाजी कर रहे हैं भावेश, जबकि नए बैट्समैन पिच पर आए हैं। सूरज पाटिल सामना कर रहे हैं मोनिस चौधरी। समीकरण 16 गेंदें शेष, जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता। भावेश चौधरी, ओह बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर था, छोड़ दिया वहां पर। दुविधा में बल्लेबाज, इससे पहले वाइड गेंद देखने को मिली थी, उन्होंने सोचा कि शायद ये भी वाइड है, खेलने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अच्छी गेंद थी। सोचने से कुछ नहीं होता है, जो भी होता है आप कुछ करते हैं तो करने से ही होता है। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया हवा में, बढ़िया कैच, चिराग माली का रनिंग, लंबे लंबे डक भरते हुए कैच पे पहुंचे। और अब हम कह सकते हैं कि आसमान में हल्के फुल्के बादल, लेकिन कठिनाई के गहरे बादल मंडलाते हुए साइंस स्पोर्ट खारबाओं की बल्लेबाजी पर। हालांकि जूसी हाफ वाली थी, लेकिन बहुत दूर से लॉफ्ट किया था गेंद को। ये देखिए जगह भी थी, जहां पर खेलना था वहां पर खेल नहीं पाए, जहां पर खेलना चाहिए था वहां खेल नहीं पाए, सामने खेला उन्होंने, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। हालांकि आमतौर पर यह सुरक्षित इलाका भी माना जाता है, लेकिन चिराग बहुत ही जबरदस्त फील्डर है, जबरदस्त फुर्तीले खिलाड़ी है,
एंटिसिपेशन कितना बढ़िया था उनका, बहुत तेज दौड़े वो अपनी दाहिनी तरफ जैसे स्ट्रोक खेला गया था और एक अच्छा कैच समाप्त किया। देखिए पूरे महापौर चषक पे हम नजर डालते तो चेसिंग में मैच कम जीते गए, हालांकि फिर भी टीमें टॉस जीतती और फील्डिंग लेती। 14 गेंदें अभी भी बची है और 29 रन अभी भी चाहिए। पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई खारबाव टीम की, ताश के पत्तों की तरह पारी बिखर गई है सिद्दीक जी। सिटी क्रिकेट, सिटी इमर्जिंग और ग्रामीण के मैचेस 5-5 ओवर के रहेंगे। बोल्ड परफेक्ट यॉर्कर, इसीलिए तो क्रिकेट में दो ही चीजों का सम्मान होता है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। व्हाट अ बॉल, गजब की गेंद, शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन गेंद इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बल्लेबाज को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, ये देखिए इससे पहले कि वो बल्ला नीचे ला दे काम तमाम कर दिया उनका सटीक यॉर्कर। स्विंगिंग यॉर्कर, चारों शाने चित करते हुए बल्लेबाज को। अब हम कह सकते हैं कि कठिनाइयां और बढ़ती हुई और मजबूत पकड़ विलास स्पोर्ट्स रानाल की। स्कोर है 14 विकेटें गिरी, अब 7। देखिए फॉल ऑफ विकेट देखिए, 0 पे 1, 9 पे 2, 11 पे 3, 12 पे 4, 13 पे 5, 14 पे 6 और 14 पे 7। पहले ओवर में 9 रन आए थे, एक ही विकेट गिरा था, तब लग रहा था कि ठीक ठाक शुरुआत की है बल्लेबाजों ने। एक इंटरेस्ट रह गया है, बीसीसी ने कल देर रात लोएस्ट स्कोर बनाया था 24। क्या रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए? इस मरतबा अच्छा ड्राइव, 1 रन। गजब का ओवर ये भी रहा, भावेश भी काफी सफल साबित हुए, 3 विकेट्स उन्होंने भी चटकाए। इससे पहले बंटी पाटिल ने 3 विकेट चटकाए थे। इस तरह से 3-3 विकेट्स लेते रहेंगे गेंदबाज तो फिर ऑल आउट हो सकती है आगे भी यदि इसी तरह से गेंदबाजी होती है तो। खारबाव टीम संकट में फंस गई है, ऑल आउट भी हो सकती है, 7 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। समीकरण बहुत ही कठिन है, स्कोर हुआ है इस समय मात्र 15 रन, 28 रनों की आवश्यकता है, 12 गेंदें शेष। 15 रन में देखना है रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए। लोएस्ट स्कोर बीसीसी के नाम है। अच्छा ड्राइव फुल पे लेके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, 16 पे पहुंचा स्कोर। अब ऐसा नहीं कि मैच खत्म हुआ हो, लेकिन अवस्था दयनीय हो चुकी है इस रनचेज में साइश खारबाव टीम की। बड़ी टीम, लेकिन उतना बड़ा प्रदर्शन बल्लेबाज अभी तक दिखा नहीं पाए हैं। 16 रन बने हैं 7 विकेटों के नुकसान पर, चौथे ओवर का खेल चलता हुआ, 11 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। चिराग माली राइट आर्म ओवर द विकेट, और पेच इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है और चिराग को पता है कि उनके फील्डर्स कहाँ पर है। कप्तान है चिराग माली, फील्ड के अनुसार गेंदबाजी करते हुए आगे खिला रहे हैं। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ उन्होंने ले रखा है। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, मात्र 17 रन। अब जीतने के लिए 10 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता खारबाव टीम को। और इस बार घुमाना चाहते थे, लेकिन कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। रन जरूर मिला है लेकिन लेग बाय के रूप में, और इक्का दुक्का रनों से अब कहां पर बात बनने वाली है। बड़े शॉट्स खेलने होंगे। स्कोर 18 पर पहुंच चुका है 7 विकेटों के नुकसान पर। 43 का टारगेट है, 43 का टारगेट 5 ओवर के खेल में इस ग्रामीण के मैच में साइश खारबाव टीम के सामने। एक और अच्छी गेंद, तेज तर्रार, लोअर फुल टॉस, मोड़ दिया उसको डिप स्क्वायर लेग की तरफ, फिर से सिंगल। और काफी खुश है इस समय चिराग माली, उनको पता है कि उनकी टीम जीत की तरफ बढ़ रही है। कोई भी चौका इस पारी में देखने को नहीं मिला है, केवल एक छक्का लगा था अक्षय पाटिल के बल्ले से। कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया है। स्कोर इस समय 19 रन और 24 रनों की जरूरत, 8 गेंदें शेष। इस बार लंबा हिट, गेंद हवा में है, काउ कॉर्नर की दिशा में, रेंज रोवर शॉट, 6 रन। गजब का शॉट, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, अक्रॉस द लाइन खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन बल्ले के बीचों बीच क्रीज के कोने से यह गेंद की थी। ऑफ के काफी बाहर से उसको खींच के मारा है, और क्या गजब की टाइमिंग है, ताकत का पूरा इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने। सिक्सर निकलता हुआ,
वेदांत के बल्ले से इसी तरह के स्ट्रोक्स की आवश्यकता। स्कोर उछलता हुआ 25 रनों तक पहुंच चुका है, अभी भी 18 रन चाहिए, 7 गेंदें शेष। लोअर फुल टॉस, नो बॉल का इशारा, इस बार ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन जरूर मिलेगा। नो बॉल, ओवर स्टेपिंग, गलती कर बैठे वहां पर चिराग माली। उनके स्पेल की अंतिम गेंद है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ज्यादा जोर लगाने का प्रयास, फ्रंट फुट मेरे ख्याल से रिटर्न क्रीज को उनका पैर छुआ है। बिल्कुल इसी का नाम क्रिकेट है। क्या शॉट खेला था आपने, सही कहा, रेंज रोवर शॉट, लेकिन रेंज रोवर के ऊपर से गेंद गई थी। 7 गेंदे 16 रन, फ्रीड गेंद, पुल करने की कोशिश, इस बार ऊपरी किनारा लगा है, फ्रीड का ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए, लेकिन मैच में रोचकता बरकरार है। सिंगल आखिरी गेंद पर 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 28 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंदें शेष है इस मैच में और खारबाव टीम को इन 6 गेंदों पर बनाने हैं 15 रन। अट्ठाईस रन 7 विकेटों के नुकसान पर चिराग माली का ओवर थोड़ा सा महंगा रहा। 2 ओवर में 28 रनों की आवश्यकता थी, 1 ओवर में 15 रन चाहिए। और यही आधुनिक ग्रामीण क्रिकेट है सिद्दीक बाबे, 7 विकेट्स गिरने के बावजूद भी इतने अच्छे शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। टेलेंडर्स भी आजकल बिल्कुल मंजे हुए बल्लेबाजों की तरह खेलते हैं। वेदांत 9 पर बैटिंग करते हुए, 1 छक्का उनके बैट से निकला है, 5 गेंदों का सामना किया है। उनका साथ दे रहे नयन मात्रे, जिन्होंने 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स बनाए हैं। बहुत सही कहा अजय गरत आपने। कभी कभी आपने देखा होगा, एक कहावत है कि हाथी चला गया धूम रह गई। टेल बैटिंग रेजिस्टेंस करती हुई। जी हाँ, किसी को भी हल्के में नहीं आंका जा सकता है आधुनिक क्रिकेट में। आखिरी ओवर लेकर करण हवा में खेल दिया है और सीधे फील्डर के पास। टाइमिंग अच्छी थी लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए और बैट्समैन आउट। नयन लौटते हुए पेविलियन में, हालांकि ये गेंद बहुत बढ़िया थी, लोअर फुल टॉस, लेकिन शॉट भी अच्छा जमाया था, गैप में खेलने की आवश्यकता थी। 5 गेंदें जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता, केवल 2 विकेट्स बचे हैं खारबाव टीम के। स्कोर 28 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। क्रिकेट का खेल बहुत ही जबरदस्त है, शानदार और महान अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट का। और यह अगला मुकाबला जिसका इंतजार काफी दर्शक कर रहे हैं, वेद 11 धान्यू बनाम सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव। पोगाव टीम ने टॉस जीता है, अगले मैच का पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। धान्यू टीम के कैप्टन ने काफी उम्मीदें रखी है विश्वनाथ जाधव से। टॉस में कहा उन्होंने कि 50 अपेक्षित है विश्वनाथ से। नए बैट्समैन, अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, सीधे बॉलर की तरफ खेला, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर में करण कांबले। नए बैट्समैन नीतीश आए हैं। वेदांत के पास स्ट्राइक क्षमता रखते हैं बड़े शॉट्स लगाने की। 4 गेंदे 15 रन चाहिए। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, लेकिन ग्राउंडेड शॉट बना है। लॉन्ग ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग, बहुत तेजी से गेंद पर आए थे फील्डर। अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर अक्षय द्वारा। केवल 1 ही रन इस गेंद पर। 3 गेंदें अब बची है, जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। साइश खारबाव टीम 43 रनों का पीछा कर रही है। शुरुआत बहुत ही खराब रही, पहली गेंद पर विकेट गिरा था, उसके बाद लगातार विकेट्स गिरते चले गए। यह फुल टॉस है, कमजोर गेंद, लेकिन मजबूत शॉट नहीं देखने को मिला। फिर से गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में और फिर से 1 रन। मैच यदि टाई होता है तो 2 गेंदों का बॉल आउट है। बॉल आउट टाई होता है तो जिस टीम ने टॉस जीता है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। 2 गेंदें शेष है, 13 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद का सामना करते हुए वेदांत, घुमाया जरूर लेकिन एलिवेशन नहीं है, मिस टाइम स्ट्रोक और फिर से केवल 1 रन। तो ये मुकाबला अब पूरी तरह से चिराग माली के रानाल टीम के पक्ष में झुक चुका है। अच्छी कप्तानी चिराग माली की, कम टोटल पर भी जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली। चिराग माली ने बल्लेबाजी भी अच्छी की थी, 13 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए और कुछ विकेट्स भी निकाले। आखिरी गेंद लीगल गेंद है, उसी की आवश्यकता थी रानाल टीम को और इसके साथ ही यह मुकाबला विलास स्पोर्ट्स रानाल टीम ने जीत लिया है।
हार्दिक हार्दिक अभिनंदन विलास स्पोर्ट्स राहनाल एंड हार्ड लक साई स्पोर्ट्स खारबाव. बयालीस रन बनाए थे टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस मुकाबले में राहनाल टीम ने. 43 का टारगेट था लेकिन जवाब में केवल 32 रनों तक ही पहुंच पाई 5 ओवर के खेल में 8 विकेटों के नुकसान पर साइश खारबाव टीम. और ये देखिए किस तरह से विकेट्स गिरे थे. ये शॉट बहुत अच्छा था अक्षय के बल्ले से. स्विच हिट उन्होंने खेला था, चिराग की गेंद पर छक्का लगाया था. उसके बाद ये देखिए बहुत ही लाजवाब कैच देवेश नाइक द्वारा. कैचिंग बढ़िया रही, फील्डर्स का बहुत अच्छा साथ मिला गेंदबाजों को. बैक ऑफ लेन गेंदबाजी देखने को मिली थी दूसरे और तीसरे ओवर में जिसका फायदा हुआ था. और कुछ कमजोर गेंदें भी मिली थी बल्लेबाजों को लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए थे. फुल टॉस गेंदों पर भी विकेट्स गंवाए बल्लेबाजों ने. और ये तो बहुत ही लूज शॉट था, टॉपेज लगा था. शॉट फाइनली की दिशा में देवेश ने बहुत अच्छे कैचेस लपके अपनी टीम के लिए. ये स्ट्रोक अच्छा था लेकिन उससे भी बढ़िया कैच चिराग माली द्वारा. और ये तो सबसे बेहतरीन यॉर्कर देखने को मिली है इस मेयर कप में. 8 गेंदें शेष. बहुत ही बढ़िया टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज द्वारा. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ आपको लेकर चलते हैं. 7 गेंदें 16 रन, ट्रेड गेंद बॉल करने की कोशिश. इस बार ऊपरी किनारा लगा है, देर का ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए. हवा में खेल दिया है और सीधे फील्डर. 2-3 दावेदार नजर आ रहे हैं मैन ऑफ द मैच के लिए. चिराग ने भी ऑलराउंड प्रदर्शन किया है लेकिन जिन्होंने सही मायनों में मैच में वापसी कराई अपनी टीम की, दूसरा ओवर किया था बंटी पाटिल. 3 रन देकर 3 विकेट्स. साथ में भावेश भी दावेदार है. भावेश ने भी 3 रन देकर 3 विकेट्स लिए हैं और भावेश ने अपने टीम के लिए 7 रन भी बनाए थे. तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है भावेश. Is all right, Ajay Gharat. भावेश चौधरी इज द मैन ऑफ द मैच. ऑलराउंड परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन में जुड़ते हुए मैं सम्माननीय विश्वास भुई और ग्राम पंचायत सदस्य शेलार और तालुका क्रिकेट के एवर हिट ऑलराउंडर दीनू भोयर दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जोड़ना है. वेलकम भावेश. ऑलराउंड परफॉर्मेंस भावेश चौधरी का. सबसे पहले हम एक चेक दे रहे हैं विश्वास भुई के हाथों से 1000 रुपए का. और ये वो ट्रॉफी है दीनू भोयर ग्राम पंचायत सदस्य शेलार और ग्रेट ऑलराउंडर. आपको ये ट्रॉफी यादगार ट्रॉफी दे रहे हैं जो आपको याद दिलाएंगी कि महापौर चषक में आपने A1 परफॉर्मेंस किया था. बहुत धन्यवाद. हमारे दोनों मान्यवर्स का निवेदन है प्रेजेंटेशन की शोभा बढ़ाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. क्या लग रहा था भावेश चौधरी जब 43 रन आपने बनाए थे तो क्या गेम प्लान था? सामने की टीम बहुत मजबूत थी. क्या गेम प्लान करके आए थे कि किस तरह की गेंदबाजी करेंगे? गेम प्लान एक ही रखा था, अच्छी बॉल डाल दे, आगे बॉल डालो और बैट्समैन को रोकने का. भावेश आप मानते हैं ना कि केवल आपने सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की? हाँ जरूर, सभी ने अच्छी गेंदबाजी तभी तो जीते हम. और इस जीत को आप किसके नाम देंगे? पूरे टीम के ही नाम दूंगा, खासकर हमारे बंटी पाटिल जिनको काफी अनुभव है ग्राउंड का. उन्होंने हमको बोला कि आगे रोको, आराम से मैच जीते. और एक आखिरी सवाल कि जो बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं गलतियां हुई है क्योंकि आप महापौर चषक के रहे, ये वंश है, क्या उसको सुधार के अगले मैच में शाम में आप आएंगे? जरूर, बैटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करके आएंगे अगले मैच में. तो उम्मीद करें कि रानाल आगे की तरफ देख रही. हाँ जरूर, आगे की तरफ देख रहे. ऑल द बेस्ट. ये थे दोस्तों आज के मैन ऑफ द मैच भावेश चौधरी, मैन फ्रॉम रानाल. मैं आपको लिए चलता हूं प्रियांशी स्टूडियो में सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत के पास. धन्यवाद सिद्दीक बाबे. तो यह है बड़ा मुकाबला वेद 11 दानिव